Welcome class again in geometry session. So today we are going to learn about the practice set 1.2 from the geometry 9, that is the basic concept in geometry में से हम exercise 1.2 अब देखेंगे. But before the starting of this session I would like to revise once again what we had studied in the earlier session. So we know that we had studied about the line segment and raised midpoint of a segment, how to find the distance of a point from a line, and next to comparison of a segment, perpendicularity of segment and raised to. तो हमने ये सब पहले देखा है. अब इस सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस जहां पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द फर्स्ट क्वेश्चन, their table, the given table shows that some points on a number line has and their coordinates, then decide whether the segments or the pair of segments given below the table are congruent or not. तो पहला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक टेबल दिखता है. इस टेबल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि नंबर लाइंस के ऊपर के पॉइंट है और उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. और उसके बॉटम में अब टेबल के नीचे आपको पूछा गया है देयर आर सम पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स आर गिवन. पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स आपको दिए गए हैं और उन पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड व्हिच सेगमेंट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो चलिए पहली पेयर हम देखते हैं सेगमेंट, दैट इज सेगमेंट डी एंड सेगमेंट AB. सेगमेंट डी एंड सेगमेंट AB. So we have to verify are they congruent each other or not. तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हम वेरीफाई करेंगे. लेकिन हमने इससे पहले लर्न किया है हाउ टू आइडेंटिफाई द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स और नॉट. So we know that the basic condition that is required for the congruency of two segments, that is we must have to know the length of the both segments are same or equal. जब दो segments की length equal होगी या same होगी तभी हम ये कह सकते हैं that two segments are congruent or not. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें सेगमेंट डी और सेगमेंट AB इन दोनों सेगमेंट का पहले लेंथ हमें डिस्टेंस और द डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले वी हैव length D is equals to the coordinate of point D in the figure equals to what? The coordinate of point D is -7 and coordinate of E is 9. So we know that how to get the distance between two distinct points on a number line. तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है और वो डिस्टेंस फाइंड किया जाता है स्मॉलर कोऑर्डिनेट लार्जर कोऑर्डिनेट से सबट्रैक्ट करके. तो यहां पर आपको नोटिस करना होगा हियर the coordinate of D is -7 and coordinate of E is 9. So 9 is greater than -7. Therefore length D is equals to 9 minus -7. So it is equal to 9 minus 9 plus 7 is equal to 15. So let the equation first. ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ सेगमेंट डी. नाउ लेंथ ऑफ सेगमेंट AB इक्वल्स टू व्हाट? अब AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है तो यहां पे फिर से हमें फोकस करना पड़ेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A. द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 5. सो हियर 5 इज ग्रेटर देन -3. Therefore length of segment AB it is equal to 5 minus -3. 5 minus -3. So it is equal to 5 plus 3 equals to 8. Let the statement number 2. So now we can observe the distances or the lengths of segment D and segment AB are not equal from first and second. तो इसका मतलब ये हुआ the segment D is not congruent to segment A. तो यहाँ लिखेंगे therefore from 1 and 2, from 1 and 2, length of D is not equal to length of AB. Therefore segment D is not congruent to segment A. तो इसका मतलब ये हुआ सेगमेंट D is not congruent to segment AB. तो ये लिया हमने
क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बिट। अब इसमें और दो बिट्स हैं जहां पे आपको दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ सेगमेंट्स मिलेंगी। वो दो प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस के तौर पर, तो यहाँ पे हम उसे नहीं लेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम हम देखेंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, second question, we had already studied about the midpoint of a segment। हमने midpoint of segment के बारे में पढ़ा है और we know that every line segment have a unique midpoint and the midpoint is the point on the line segment which divides the given segment in exactly two equal parts। तो इसके आधार पर हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। The next problem, second। तो यहां पे आपको बताया गया है कि if point M is the midpoint of segment AB, if AB equal to 8, then find the length of AM। So we have solution। आपको कहा गया है M is midpoint of seg AB। M is midpoint of seg AB, therefore we know that AM is equal to half of AB। AM क्या होगा? AB के half आएगा, so AM equal to half of AB, but we have the length of AB that is 8, 1/2 into 8, therefore we get AM is equal to 4। तो ये रही आपकी लेंथ ऑफ सेगमेंट AM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट P is the midpoint of segment CD। If CP equal to 2.5, then find length of CD। अब हमको कहा गया है P is midpoint of segment CD। P is midpoint of segment CD and length of CP is equal to 2.5 given। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। सो वी नो, हमें पता है कि मिड पॉइंट जो है वो किसी भी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव CP equals to half of CD। CP equals to half of CD, but CP is given 2.5, it is equal to half of CD, therefore CD is equal to 2.5 into 2, it is equal to 5। तो ये रही आपकी लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 is if AB equal to 5 centimeter, AB equal to 5 centimeter, BP equal to 2 centimeter and AP equal to 3.4 centimeter, compare the segments। आपको कहा गया है कि सेगमेंट AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सेगमेंट BP की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और सेगमेंट AP की लेंथ 3.4 सेंटीमीटर है। They compare the given segments। So we are well known how to compare the segments। आपको अच्छी तरह से पता है कि दो सेगमेंट कंपेयर कैसे किए जाते हैं। The comparison of segments is on the basis of the length of the given segments, or on the basis of length of the given segments we can justify which one is the greater and which one is the smaller, or we can place an ordinal relationship between them। Okay, so here solution, here we have AB equals to 5 centimeter, comma BP equals to 2 centimeter and AB is equal to 3.4 centimeter। So here we have 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2। That is means length of AB is greater than length of segment AP and length of segment AP is greater than length of segment BP। So here this is the descending order of the length of the segments, that is AP is greater than AP and AP is greater than BP। So therefore we can say that therefore segment AB is greater than segment AP and segment AB is greater than segment BP। So this is the ordinal relationship between the
given three segments, or this is the comparison of the given three segments. Okay, so this one is the fourth problem. Now problem number 5. Problem number 5. So we have a figure here. T, S, R, P and Q. So write the answer of the following questions with reference to the given figure. तो क्वेश्चन फिफ्थ आपके लिए है, with reference to the given figure we have to answer the given questions. तो आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको आंसर करना है, बट आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लें कि आपको जो आंसर लिखना है वो एग्जाम में हो या फिर आपकी नोटबुक में हो, वो आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, टोटल सेंटेंस में आप आंसर लिखेंगे, जहां पर एक मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. सो फर्स्ट वन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट क्वेश्चन, write the name of the opposite ray of ray RP. Write the name of opposite ray of ray RP. So here is the ray RP. यहां से इधर राइट साइड में जो रे दिखेगा, this one is the ray RP and we have to represent or write the name of the opposite ray of this ray RP. That is the opposite ray of ray RP, that is ray RS or ray RT. तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे opposite ray or maybe ray RS is the opposite ray of ray RP. ray RS is the opposite ray of ray RP. इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. The second question, write the intersection set of ray PQ and ray RP. Write the intersection set of ray PQ and ray RP. अब आपको रे आरपी और रे पीक्यू का इंटरसेक्शन सेट लिखना है. आप 9th स्टैंडर्ड में और इसी साल में आपने फर्स्ट चैप्टर इन अलजेब्रा देखा है सेट. सो वी आर वेल फैमिलियर विद द कांसेप्ट इन यूनियन सेट, सबसेट, इंटरसेक्शन सेट, यूनिवर्सल सेट एंड डिफरेंट सो मेनी. ओके, तो यहाँ पे आपको रे आरपी और रे पीक्यू का इंटरसेक्शन सेट लिखना है. तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं इंटरसेक्शन सेट मींस व्हाट, द सेट फॉर्मिंग बाय द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द बोथ ऑफ द सेट्स. दोनों सेट में के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट बनेगा उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन सेट. तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा रे आरपी इसका मतलब ये पूरा रे, और रे पीक्यू इसका मतलब यही रे, बट आर सेगमेंट आरपी उसमें इंक्लूड नहीं होगा. तो इसका मतलब ये होता है रे आरपी और रे पीक्यू का जो इंटरसेक्शन होगा वो पूरा रे पीक्यू होगा. तो यहां पर हम लिखते हैं आंसर में रे पीक्यू is the intersection of ray RP and ray PQ. ray PQ और ray RP का इंटरसेक्शन ray PQ ही होगा. The third question, अब तीसरा क्वेश्चन, write the union set of ray PQ and ray QR. Third, write the union set of ray PQ and ray QR. आपको ray PQ और ray QR का यूनियन सेट लिखना है. तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ray PQ इधर से राइट साइड को जाएगा और ray QR राइट से लेफ्ट को जाएगा. तो ये पूरा रे हुआ. इसका मतलब ये होता है इन दोनों का यूनियन सेट हम उसे कहते हैं जिसमें सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट ऐड किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी. ओके, तो यहां पे भी यूनियन ऑफ PQ एंड यूनियन ऑफ QR, दैट इज द होल लाइन QR. यहां पे हम कह सकते हैं आंसर में लाइन QR इज द यूनियन ऑफ रे PQ एंड रे QR. रे PQ और रे QR का यूनियन होगा
लाइन QR, पूरी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, चौथा क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द रेज ऑफ व्हिच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। स्टेट द रेज व्हिच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। आपको ये स्टेट करना है कि कौन से दो रेज होंगे और कौन से ऐसे रेज है इन फिगर में, इस फिगर में जिसका QR सेगमेंट QR ये सबसेट होगा। तो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं सेगमेंट QR इज द पार्ट ऑफ रे QR एज वेल एज सेगमेंट QR इज द पार्ट ऑफ रे RQ। तो हम यहां पे कह सकते हैं सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ रे QR एंड रे RQ। आंसर, सेगमेंट QR इज सबसेट ऑफ रे RQ एंड रे QR। तो सेगमेंट QR रे RQ और रे QR का क्या हुआ, सबसेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बीट नंबर 5। The question is, write the pair of opposite rays with common endpoint R. Write the pair of opposite rays with common endpoint R. R endpoint रहने वाले दो ऐसे रे आपको रिप्रेजेंट करना है कि जिसका endpoint R हो। सो यहां पे हम नोटिस कर सकते हैं रे RP and रे RS are the two rays having the same origin, that is with endpoint R. Answer, इन शॉर्ट में आप लिखूंगा, लेकिन आपको जब लिखना है तब फुल सेंटेंस में आप लिखोगे जैसे मैंने अब तक के लिखे थे। दैट इज रे RP एंड रे RS आर द टू रेज हैविंग द कॉमन एंडपॉइंट R। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंडपॉइंट S। राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंडपॉइंट S। तो यस से कॉमन एंड पॉइंट में से स्टार्ट होने वाले दो रेज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे फर्स्ट रे है रे SR और सेकंड रे है रे ST। आंसर, रे SR एंड रे ST आर द टू रेज हैविंग द कॉमन एंड पॉइंट S। द लास्ट 7th one, write the intersection of set of ray SP and ray ST। रे SP एंड रे ST का आपको इंटरसेक्शन सेट लिखना है और वो इंटरसेक्शन सेट बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हो। द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SR एंड रे ST इज द पॉइंट S। सो पॉइंट S इज इंटरसेक्शन, पॉइंट S है इंटरसेक्शन ऑफ रे SR एंड रे ST। सो दिस इज द एंड ऑफ योर